All right, let us begin quadrilaterals. First question is, what is quadrilaterals? Like we learned, what is triangles? What is quadrilaterals? Quadrilateral is a four-shaped figure, right? When four line segments are taken and connected in whatsoever way, but they are forming, let's say, be the trapezium method, कुछ random ऐसे, है ना? When any four line segments come and they form a closed figure, we call it a quadrilateral. The figure should be closed. We call it a quadrilateral, right? What are the names of quadrilateral? Do you remember? कौन से quadrilaterals तुम्हें याद है? कौन से याद है? List down. Very good. We know square. Square क्या होता है? All sides equal, all angles 90 degree. So we know square. Very good. We know rectangle. Opposite sides equal and all angles 90 degree. Then we know rhombus. Rhombus looks like this. Rhombus का क्या होता है? All sides equal, but angles are not 90 degree. Then what do we know? Very good. Parallelogram. Parallelogram, again, opposite sides are equal and angles are not 90 degree. And then we have trapezium. Trapezium है, जिसमें one set of lines are parallel. फिर और इसके अलावा there's a shape called kite also, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हुए देखे नहीं है, ठीक है? तो ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स है लार्जली, जिसके हमें नाम पता है ना? अब इन क्वाड्रिलैटरल्स आर स्मार्टली ट्राइड टू बंच the properties in such a way that it's really quick for you to memorize, rather than teaching you हर एक shape का property अलग से, so on and so forth. मैंने उसमें patterns जो है वो तुम्हें बताया, because as I was telling you, you have to remember the patterns of properties. You can't memorize every single property. That's just so hard. So it's more important that you memorize the patterns. So let us look at types of quadrilaterals starting from parallelogram. ठीक है? So parallelogram की definition क्या है? Parallelogram is basically a shape, a four-sided shape with two sets of its sides parallel, opposite sides parallel. So parallelogram is a quadrilateral जिसके opposite sides are parallel to each other. ठीक है? That is what makes a parallelogram. ठीक है? Opposite sides parallel to each other. Right? वो होता है parallelogram. Okay? अब जब तुम इस पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल कर दो, अगर हमने इस पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल कर दिए, है ना? हमने इस पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल कर दिए, तो क्या बना? रोम्बस. हमने क्या किया? इसके सारे साइड्स इक्वल कर दिए. ये भी पैरेलल है अभी भी, है ना? वो तो है ही, बट एट द सेम ऑल द लेंथ्स हमने इक्वल कर दिए. लेंथ्स इक्वल कर दिए. द मोमेंट वी मेड ऑल साइड्स इक्वल, इट बिकेम अ रोम्बस. फेयर? आई वांट टू राइट दिस थोड़ा अच्छे से, क्योंकि वो ऊपर एकदम ऐसे मर्ज हो गया. So what is a parallelogram? Parallelogram is a four-sided shape with its opposite sides parallel to each other, है ना? Opposite sides are parallel. So opposite sides are parallel, we call it a parallelogram. है ना? अब इसी में अगर हमने क्या किया? हमने इस parallelogram के सारे sides equal कर दिए. So the moment we make all sides equal, है ना? All sides equal. Sides equal बना दिए, तो अभी भी opposite set of sides are parallel to each other, but they are all equal also. तो क्या बन गया हमारा? हमारा बन गया रोम्बस. और ये हमने साइड्स के साथ प्ले किया. साइड्स के साथ क्या प्ले किया? ऑल साइड्स इक्वल कर दिया. वैसे ही साइड्स को वैसे ही रखते हैं, बट ऑल एंगल्स इक्वल कर देते हैं. ऑल एंगल्स इक्वल मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स इज, फॉर अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो 360 डिवाइडेड बाय 4, 90. हमने सारे एंगल्स इक्वल कर दिए, है ना? ऑल एंगल्स इक्वल, एंड दैट इक्वल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये बन गया ऐसा, है ना? तो अभी क्या है? ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल एक दूसरे के, है ना? But that's not the thing. It's not about the sides. It's about the angles. The angles we have made as, तो क्या बन गया हमारा? रेक्टेंगल. तो यही पैरेललोग्राम है. सेम पैरेललोग्राम, उसके साइड्स इक्वल कर दो तो बन गया रोम्बस, और उसके सारे एंगल्स इक्वल कर दो तो बन गया रेक्टेंगल, है ना? एंड जब अगर हम दोनों भी कर दे, हम साइड्स भी इक्वल कर दे और एंगल्स भी 90 डिग्री कर दे, तो क्या बन जाता है? साइड्स भी इक्वल और एंगल्स भी सारे 90 डिग्री. क्या बन जाता है? ऊपर लिखते हैं, क्या बन जाता है? स्क्वायर,
है ना, इसके ऑल साइड्स ऑल्सो इक्वल एंड एंगल्स ऑल्सो इक्वल। तो इस तरीके से हमारे 4 टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स बनते हैं। ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या था? पैरेललोग्राम इज अ शेप वेयर इट्स अ 4-sided शेप विद इट्स ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, व्हिच इज ट्रू एवरीवेयर, है ना। तो ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। व्हेन साइड्स आर इक्वल you get a rhombus, and when angles are equal you get a rectangle, and when both happens together you get a square. Are we all good here? Till here are we all good? So all these 4 are types of parallelogram. तो अगर ये सारे पैरेललोग्राम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी काफी काफी सेम होती है, ठीक है। अगर ये सारे पैरेललोग्राम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी काफी काफी सेम होती है। तो क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। लेट मी ड्रॉ दैट थिंग अगेन। दिस इज अ parallelogram. Opposite sides are parallel and then यहाँ पे equal भी parallelogram. Then we have a rhombus. Then we have a rectangle. I don't think I need to name them anymore because तुमको उतना तो आता है नाम किसका क्या है ना। अननेसेसरी स्पेस जा रही है ना उसमें, फिर सुंदर नहीं दिखेगा हमारा। दिस इज अ स्क्वायर, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में क्या आता है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसके जो डायगोनल्स है, एक डायगोनल है D1 और एक डायगोनल है D2। सो बोथ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इस पॉइंट पे ये भी हाफ में डिवाइड होता है, राइट। क्रॉस कर देती हूँ, ये भी हाफ में डिवाइड होता है, ये भी हाफ में डिवाइड होता है ना। D1 को D2 हाफ में डिवाइड करता है और D2 को D1 हाफ में डिवाइड करता है। सो फर्स्ट रियली रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में पता है कैसे लिखते हैं? पैरेलल लाइन करके ग्राम लिखते हैं। सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect, diagonals of a parallelogram bisect each other. So that's a really important property. Now this property remains common everywhere because all of these are parallelograms. ये सारी पैरेललोग्राम्स है, तो ये प्रॉपर्टी सबको ही अप्लाई होती है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, rhombus is a parallelogram, rectangle is a parallelogram, square is a parallelogram. So all of them bisect each other and फिर एडिशनल क्या हो जाता है यहाँ पे? they also bisect at 90 degrees. Bisect तो कर ही रहे हैं, but they bisect in rhombus, they bisect each other at 90 degrees. है ना? So they bisect each other and here they bisect at 90 degrees. और यहाँ पे, sorry, यहाँ पे in rectangle the thing is the diagonals of parallelogram bisect each other and the diagonals are equal also. They are equal. They do not bisect each other at 90 degree, but ये दोनों equal है, तो ये चारों parts equal हो गए दूसरे। And for square, both is true. They bisect at 90 degree and both the diagonals are equal also. ये दोनों true है, ठीक है। So these are the properties of parallelogram, first part of it. So this is all primarily regarding the diagonals. So diagonals of a parallelogram bisect each other. मैं memorize कैसे करती हूँ पता है इसको? मैं ये बोलती हूँ कि यार rhombus sides के बारे में था, sides equal करे थे, right? तो diagonals उसके angle के बारे में 90 डिग्री आ गया, राइट। और रेक्टेंगल कैसे आ गया था? रोम्बस के एंगल्स को हमने 90 बना दिया था, राइट। तो इसके डायगोनल्स की लेंथ के बारे में होगा, तो डायगोनल्स आर इक्वल। इस तरीके से मैं याद रखती हूँ पर्सनली। इफ इट कंफ्यूज यू कीप इट असाइड, ठीक है। और स्क्वायर में तो दोनों होता है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड इन रोम्बस एंड स्क्वायर दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड एट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दे आर द डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, है ना। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, पहले तो मैं लिख ही लेती हूँ। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज अनदर प्रॉपर्टी? डज एनीबडी नो? इन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, राइट। ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, राइट। तो फिर इसके जो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, है ना, ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, दिस इज एट द एंड अ ट्रांसवर्सल, राइट, ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस।
right? So what will happen to the adjacent angles? The adjacent angles add up to 180 degrees. Do you remember this? Co-interior angles. These are co-interior angles, right, for parallelograms. So basically next property is कुछ अलग नहीं है, ये तो हम सीख चुके हैं, but parallelogram से associated कि adjacent angles of a parallelogram add up to 180 डिग्री. ये कौन से भी सेट ऑफ उसके लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि अगर हम इसको देखें, इसको और इसको पैरेलल लाइन देखें और इसको ट्रांसवर्सल समझे, तो फिर ये और ये को इंटीरियर हो गया, तो इन दोनों का भी सम 180 होगा, है ना. फिर अभी इसका और इसका सम 180 है और इसका भी सम 180 है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए ना एक दूसरे के. दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Okay, so these are the three main properties of parallelogram that you have to keep in mind. The diagonals of a parallelogram bisect each other. Okay, right? So the diagonals of a parallelogram bisect each other. Second is adjacent angles add up to 180 degree, and third is opposite angles are equal. Okay, so this is going to be equal to this, and this is going to be equal to this. तो ऐसा होता है. ठीक है. अब व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अभी डायगोनल्स की बात कर ही रहे थे, तो डायगोनल्स से रिलेटेड है. लेट्स से यू हैव अ पैरेललोग्राम व्हिच आई एम नेमिंग हियर as A, B, C, and D, and I'm drawing two diagonals. One is AC and another is BD. So we know the sum of squares of diagonals. Sum of squares of diagonals. AC square plus BD square. Sum of squares of diagonals is equal to sum of squares of all sides. Sum of squares of diagonals is equal to sum of squares of all sides. AB square plus BC square plus DC square plus AB square. Sum of squares of diagonals is equal to sum of squares of all sides. इसको ध्यान रखने का तरीका है by remembering Pythagoras theorem. मैं Pythagoras theorem से याद रखती हूँ. कैसे Pythagoras theorem से याद रखती हूँ? Let me go back. Let's say मैंने रेक्टेंगल ले लिया. रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है मेरा, राइट? तो इसका ये जो डायगोनल है वो हाइपोटेन्यूस है, राइट? तो ये डायगोनल का स्क्वायर विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी, नॉट दिस वाला ट्रायंगल लूंगी, दिस वाला, तो दूसरा डायगोनल है, इसका भी एडिशन इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. ये और ये साइड सेम ही है, मतलब दो डायगोनल्स को जो मैं ऐड करूंगी उसके स्क्वायर को, तो ये दो का और ये दो का एडिशन आ रहा है. तो इट्स लाइक दैट वे आई रिमेंबर. ठीक है, पाइथागोरस का हेल्प लेके कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये है कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट पैरेललोग्राम. फेयर, कैन वी मूव अहेड नाउ फ्रॉम हियर? ठीक है, आगे जाए. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स. सो इन जनरल क्वाड्रिलैटरल्स के एरिया के कुछ फॉर्मूले होते हैं कि लेट्स से फर्स्ट अगेन डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट ही फर्स्ट टाइम क्वाड्रिलैटरल में आता है ना, क्योंकि डायगोनल इज व्हाट कि एजेस, मतलब कॉर्नर्स जो वर्टेक्सेस होते हैं उनको कनेक्ट करने वाले. अपार्ट फ्रॉम एजेस के अलावा, साइड्स के अलावा जो भी दो कॉर्नर्स को, दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाले पॉइंट्स हैं उनको डायगोनल्स बोलते हैं. अब ट्रायंगल में तो डायगोनल का स्कोप नहीं था, क्वाड्रिलैटरल में ही आया, तो इसलिए यहाँ पे एवरीथिंग इज अबाउट डायगोनल्स. तो यहाँ पे अनदर थिंग इज अबाउट डायगोनल्स कि लेट्स से यू हैव अ पैरेललोग्राम which has these two diagonals d1 and d2 which are meeting each other at theta 1 या let's say theta 2, कोई भी चलेगा, theta 1 theta 2 एक ही बात है. ठीक है, they are so basically we say that area is equal to half d1 d2 half into multiplication of the diagonals into sine of theta. तो theta 1 ले लो, theta 2 ले लो, एक ही बात के साइन की वैल्यू उनकी सेम ही आएगी. वो क्यों, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे. आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट बेसिकली एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, एनी क्वाड्रिलैटरल irrespective of the shape, area of any quadrilateral is given as half into d1 into d2 into sin theta. ठीक है. Secondly, it can also be seen this way. Let's say you have some other quadrilateral, trapezium ड्रॉ कर दिया है conveniently, कोई भी quadrilateral ले लो. ठीक है, और इसका अब ये डायगोनल है, एक कोई डायगोनल ले लिया हमने और वो हाइट है ना, तो ये h1 हाइट हो गई और ये h2 हाइट हो गई.
कहाँ से आया, ट्राइंगल की हाइट होती है ना. सो बेसिकली वी कैन फॉर्म टू ट्राइंगल्स लाइक दिस एंड वी कैन से द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल is equal to sum of areas of these two triangles. हमें डायगोनल का अगर दे दिया है और हाइट्स दे दी है तो हम निकालेंगे. वेरी वेरी कन्वीनियंट, राइट. मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस. ठीक है. थर्ड इज ऑफ कोर्स हेरॉन्स फॉर्मूला दैट यू मस्ट नो कि अगर कोई इसके चार साइड्स है, राइट, तो एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू होगी, राइट. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू. वहां पे ए प्लस बी प्लस सी ही था, यहाँ पे वो है. और अंडर रूट आएगा ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस. यहाँ पे एस नहीं है, एस माइनस एस माइनस एस माइनस अंडर रूट ए, जब अगर हमें साइड ही पता होता. सो दीज आर इन जनरल द दिस थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. ठीक है. इन जनरल फॉर्मूला ऑफ एरिया. ठीक है. ये नोट कर लो. ठीक है. तो दीज आर द थ्री फॉर्मूला. उसमें से ये काफी ज्यादा यूज में आता है और हेरॉन्स फॉर्मूला उसको जब साइड ही पता. ठीक है. तो दीज आर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स 2 मैंने इसलिए लिखा है, इतने ही फॉर्मूला है और नहीं है. बट फिर हमारे पास स्पेसिफिक शेप्स आते हैं ना, तो स्पेसिफिक शेप्स से हम कैसे अडेप्ट करते हैं. तो फॉर पैरेललोग्राम, दिस इज फॉर पैरेललोग्राम ओनली. ठीक है. पैरेललोग्राम में हम, ये बेस है और ये हाइट है, राइट. तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. ये भी करते हैं. ये क्यों रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये एक रेक्टेंगल बनता है तो ये बेस और ये इसकी हाइट हो जाती है, विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट. यही हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ. हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीख चुके हैं ना, ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लियो. ब्रेड्थ की हाइट तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही हमने सीखा हुआ है, राइट. सो पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस सबके लिए एरिया इज आल्सो गिवन एज b इनटू h. ठीक है. ब्रेड्थ इनटू हाइट या लेंथ इनटू ब्रेड्थ या व्हाटएवर. ठीक है. उसके अलावा तो वैसे ही मैं अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, तो इसका आएगा वही चीज, लेंथ, राइट. और अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ करूँ, तो इसका भी सेम है, एरिया इज इक्वल टू, बट इसके साइड सारे सेम है तो साइड स्क्वायर हो गया. है बेस एक ही सबका, है ना. उसके अलावा व्हेन रोम्बस कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है, तब वी कैन आल्सो यूज द फर्स्ट फार्मूला दैट वी लर्न. वी कैन यूज इट फॉर स्क्वायर आल्सो. रोम्बस है हमारा, ठीक है. ऑब्वियसली इसके लिए ये तो आता ही है, बेस इंटू हाइट तो आता ही है इसके लिए, बिकॉज ये भी तो पैरेललोग्राम ही है. इसका बेस ये पकड़ लो और ये हाइट पकड़ लो. बट अगर हमें ऐसे नहीं करना है, डायगोनल से करना है. डायगोनल्स के थ्रू क्या था, हाफ इंटू d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा. और इसका थीटा क्या है, 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री है ना, द एंगल एट विच द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग हियर इज 90 डिग्री एंड साइन थीटा इज 1. मतलब साइन 90 डिग्री इज 1. अगेन नहीं पता तो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं. देन दिस बिकम्स हाफ d1 इंटू d2. यहाँ से आता है. तुम्हें रोम्बस का अगर याद होगा कि अरे इसका मुझे याद था हाफ d1 d2, कुछ नहीं, इट इज ऑल डिराइव्ड फ्रॉम देयर. सो बेस पॉइंट थिंग, यू डोंट हैव टू नेसेसरली मेमोराइज एरिया के अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है सब कुछ. ठीक है. सो दीज आर सर्टन फॉर्मूले अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. ये हो गया हमारा. अब लास्ट बंच ऑफ थिंग दैट वी आर लर्निंग इज अबाउट पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम एंड सर्कल का रिश्ता क्या है. पैरेललोग्राम एंड सर्कल का रिश्ता क्या है, मैं तुम्हें बताती हूँ. सो इफ there's a basically if there's a circle, है ना, और वो सर्कल के अंदर तुम कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, लेट्स से, है ना, ये पैरेलल लाइंस हो गए, ये पैरेलल लाइंस हो गए, है ना. तो whenever you draw a parallelogram inside a circle, so it is always a rectangle. ये ध्यान रखना. A parallelogram inside a circle is always a rectangle. See, these two sides are equal. ये तो होगा ही because parallelogram है, और ये अपने आप 90 डिग्रीज बन जाता है. ठीक है. So a parallelogram drawn inside a circle is always a rectangle. ठीक है. And if there is a circle, इस सर्कल के आसपास तुमको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने बोला, है ना. सर्कल के बाहर
मतलब you are inscribing the circle in the parallelogram, right? आ गया? So this will always be a rhombus. This will always be a rhombus. ठीक है, parallelogram outside the circle, touching the circle, will always be a rhombus. है ना? ये दो चीजें हमें याद रखनी है. इसमें ना एक चीज वो है, ध्यान रखना कि रेक्टेंगल है तो स्क्वायर भी होगा, रोम्बस है तो स्क्वायर भी हो सकता है ना. तो बोलते हैं मैम इसको ऐसे भी बन सकता था, स्क्वायर भी बन सकता था. हाँ, किसने मना किया? रोम्बस तो स्क्वायर भी है ना. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. इतना पार्ट तो तुम्हें समझ गया है कि तुम्हारे ये सारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे पैरेललोग्राम है ना. सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते. बट रोम्बस क्या है? साइड्स इक्वल होने चाहिए जो स्क्वायर में भी है, और पैरेलल होने चाहिए जो स्क्वायर में भी है ना. स्क्वायर के लिए 90 डिग्री लगता है जो रोम्बस के पास नहीं है. तो सारे स्क्वायर रोम्बस है, बट रोम्बस सारे स्क्वायर नहीं है ना, उस तरीके से. तो सारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पैरेललोग्राम है, बट सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर या सारे पैरेललोग्राम रोम्बस है, सारे पैरेललोग्राम वो नहीं बन सकते. ठीक है, तो उस हिसाब से तो अगर रोम्बस है तो स्क्वायर तो होगा ही, यहाँ पे भी रेक्टेंगल कैन बी स्क्वायर. बट दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, दैट इफ वी आर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल बाहर, या सर्कल के अंदर हम कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो रेक्टेंगल या स्क्वायर ही होगा 90 डिग्री वाला. और अगर सर्कल के बाहर हम एक टचिंग, उसके एजेस को टच करके क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, है ना. तो ब्रैकेट में लिखिए, बिकॉज़ एवरी रोम्बस इज आल्सो स्क्वायर. ठीक है, तो ये एक चीज याद रखनी थी. और इसके अलावा स्क्वायर एंड सर्कल का स्पेशल रिश्ता होता है. स्क्वायर एंड सर्कल को तुम्हें सेपरेटली याद रखना है. ठीक है, बिकॉज स्क्वायर एंड सर्कल का अपना रिश्ता है, बहुत ही सिंपल, कुछ वो नहीं है. इट्स जस्ट अबाउट सिमेट्री. दिस इज इंस्क्राइब्ड, दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड. अभी था ना रोम्बस रेक्टेंगल वाला चीज, राइट? एक अंदर ड्रॉ किया, एक बाहर ड्रॉ किया. तो अगर तुमको पता है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए, ठीक है, एंड दे आस्क यू टू फाइंड द इन रेडाई, ये रेडियस जो इसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, कितना आएगा उसका रेडियस? ए बाई टू आएगा ना, हाफ ऑफ ए, राइट? बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि ये हाफ में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, है ना. तो ये इन रेडाई विल बी हाफ ऑफ ए, राइट? दिस इज इक्वल ना, ये और ये इक्वल है ना एक दूसरे के, राइट? तो इन रेडाई विल बी हाफ ऑफ दैट. और अगर तुम्हें सर्कम रेडाई निकालना है ना, कि दे आस्क यू टू फाइंड दिस, राइट, सेंटर से बाहर का सर्कल, जो बाहर का सर्कल है, इसका रेडियस क्या बन रहा है? इसका रेडियस क्या बन रहा है तुम्हें दिख रहा है? सर्कल का डायगोनल है, वो इसका डायमीटर है. सर्कल का डायगोनल इसका डायमीटर है, और डायगोनल की लेंथ क्या होती है? साइड रूट टू, ए रूट टू. ठीक है, साइड रूट टू डिवाइडेड बाई टू, बिकॉज हाफ ऑफ दैट है ना. डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज क्यू, क्यू क्यू साइड रूट टू है. अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने. इनसाइड देखो, पहले डायगोनल निकालते हैं हम. we understand that, we at least understand that circum radius is half of the diagonal of square. ये हमें समझ गया, स्क्वायर के डायगोनल के हाफ है. एंड व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर? इन अ स्क्वायर, दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज हाइपोटेनियस. हो गया तुम्हारा डायगोनल. हाइपोटेनियस कैसे होगा? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज साइड रूट टू. So basically R is side root 2 divided by 2, which is side by root 2. ये आ गया वैल्यू ऑफ R. तो यही बस एक छोटा सा वो था. ठीक है, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इन अ सर्कल का स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज इट फॉर पैरेललोग्राम्स. उसके बाद में एक छोटा सा ट्रेपेजियम का ही बिट आता है, फिर उसके बाद वी हैव क्वेश्चंस टू सॉल्व. सो ट्रेपेजियम का बिट इज लाइक दिस. दिस इज अ ट्रेपेजियम. Trapezium can always be divided into two triangles and a quadrilateral. तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि ओ इट्स अ ट्रेपेजियम हैज लाइक अ, है ना. तो इसका एरिया भी इज अ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस दोनों ट्रायंगल्स, है ना. ऐसे भी निकाल सकते हैं. फॉर्मली इट इज, इफ दीज टू साइड्स इन ट्रेपेजियम, one set of sides is parallel, the other is not, and if this is a height, this is half a plus b into height. This is how you come. Half into sum of parallel sides into height. This is one direct formula, and uske alawa then it is all about adding the areas of the rectangle that is formed and the triangles that is formed. तो question के basis पे
we decide what to do with it. ठीक है. और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कुछ होता है. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी जो ये नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स ये दोनों के इक्वल हो, तो फिर उनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं इस केस में. ठीक है. So this is what it is. So these are the properties of quadrilaterals, very less compared to triangles, if you would say. And mostly वो parallelogram trapezium का एरिया ध्यान रखना, बस बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है सच. सारा पैरेललोग्राम के हिसाब से ही हमें याद रखना है. एंड पैरेललोग्राम का हमें क्या पता है, डायगोनल्स ओरिएंटेड काफी ज्यादा चीजें हैं. तो डायगोनल्स के हिसाब से हमें याद रखना चाहिए कि ओके, आई स्टार्ट विद अ पैरेललोग्राम, I can make it a rhombus, make it a rectangle, and then make it a square. And accordingly, I have properties कि diagonals bisect each other at 90 or they are equal. And then उसके बाद ये 3-4 ही प्रॉपर्टीज है जो मुझे याद रखनी है, which is diagonals bisect each other, of parallelogram bisect each other, adjacent angles add up to 180 degree, opposite angles are equal, and साथ में more importantly कि sum of squares of diagonals is equal to sum of squares of all the sides. है ना. उसके बाद एरिया का फॉर्मूला प्राइमरली बेस इंटू हाइट है, और दूसरा फॉर्मूला वाज हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंड द हेरॉन्स फॉर्मूला ऑफ कोर्स. पूछना ही था और कुछ नहीं है ज्यादा. एंड ये एक चीज सर्कल और उसके बारे में. ठीक है. दैट इज इट. सो दिस इज इट फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल.